Yes, Uh, ma'am. has it started? Now it has been started. Okay. Yes, Ma'am? somebody is asking. Yes, Yes, beta. ma'am. Ma'am, I didn't get this. It can handle low level activities. Low level activity. देखो, in previous lecture we have discussed that how that computer is working. We have primary memory, we have secondary memory, we have registers. We will be declaring certain variables into memory. If you wanted to directly interact with those underlying hardware, underlying interrupt, suppose मैं कीबोर्ड के लिए ही एक प्रोग्राम लिखना चाहती हूँ, काइंड ऑफ अ की लॉगर. Whatever you are typing should be recorded into through one program into some you can say document which can write whatever I'm typing. Although this kind of thing is definitely there for you can say intrusion, or you wanted to record someone's activity, but that program can be written in C, which is taking care of all the interrupts which is being generated by the keyboard. If you see, your keyboard is has like a input device, but whatever you are typing in a sequence, you are writing something, you are pressing certain keys. If I wanted to record, I need to go to that particular keyboard interrupt which is being generated, and my program can take those interrupts, can record it, and can further I will be able to read them. So this low level activity is actually talking about at the time of communication, like input is there, output is there, so memory is there, and how they are being processed. If you wanted to do something related to that, that is your low level activity. And if you see, most of the device driver that you are using, आप जैसे न्यू मोबाइल परचेज करते हो, स्मार्टफोन आप लेकर आए, you clicked some of the pictures and you wanted to take the backup on your laptop of those pictures. What do? You simply jack your mobile phone, directly connect that mobile phone with your laptop, and there is one driver which is going to be installed, and which makes those things compatible with your laptop, which is your smartphone and your laptop. And then you will be able to import and export your images, your folders, your files. You can take backup, you can take backup of your contacts also. But how that is being done? That driver can be a driver for the printer, driver can be there for your USB, driver can be there for your external hard disk which you use for your backups, driver can be there for cameras, for your any of the device which you wanted to connect with your laptop. So those driver which makes your things compatible, your hardware compatible with your laptop, is written in C programming itself. बिकॉज एट दैट टाइम दे आर टॉकिंग अबाउट द रेजोल्यूशन. कैमरे का रेजोल्यूशन डिफरेंट है. आप वहाँ पे जूम प्रॉपर्टी पे कॉन्सेंट्रेट करते हो क्योंकि नहीं, मुझे कैमरा परचेज करना है, मुझे हाई रेजोल्यूशन प्रॉपर्टी चाहिए, इट शुड हैव द जूम प्रॉपर्टी ऑफ दिस मच ऑफ multiplication. But when you download those pictures, then you wanted to make it compatible with the resolution of your laptop, with the resolution of your TV also, where you will wanted to project those images. So वो जो resolution की incompatibility है कि आपका लैपटॉप का रेजोल्यूशन डिफरेंट है, आपके सॉरी स्क्रीन का रेजोल्यूशन डिफरेंट है, उसको कंपैटिबल कौन कर रहा है? उसको कंपैटिबल कर रहा है एक डिवाइस ड्राइवर. फाइन. सो जितने भी डिवाइस ड्राइवर हैं जो मेमोरी लेवल पे, जो आउटपुट लेवल पे, जो इनपुट लेवल पे कंपैटिबिलिटी को अचीव कर रहे हैं, वो हमेशा सी प्रोग्रामिंग में ही लिखे जाते हैं. तभी आप देखो एचपी में जो ह्यूलेट पैकर्ड में आप प्रिंटर्स के देखते हो ड्राइवर, आप साटा ड्राइव्स में देखते हो, आप एक्सटर्नल ड्राइव्स में देखते हो, उन सब में अभी भी इस टाइप की रिक्वायरमेंट रहती है, जहाँ पे यही सी प्रोफेशनल्स लोग ही वर्क कर रहे होते हैं with these kinds of low level interaction where they were working on those kind of thing, because it is very faster, direct communication is there, directly you are dealing with the memory or the hardware, so it makes it very powerful. And low level activity का meaning ये है कि मैं underlying software और underlying hardware से directly interact कर रही हूँ. Now is it clear? Any more doubt? Yes, ma'am. So it can be compiled. Only thing you require a compiler. Without that, you cannot do. So it is a successor of B language, which was introduced around 1970, and
that time this B language was also basically created for embedded, so उसी से ही derive करते हुए C को introduce किया गया है. And एनसाई ने इस फर्दर लैंग्वेज को फॉर्मलाइज किया. इसका मीनिंग क्या होता है? स्टैंडर्डाइज करना. मैंने आपको बताया था कि एनसाई सी कंपाइलर्स हैं बिकॉज दीज आर द स्टैंडर्ड विच इज बीइंग माउंटेड. जैसे आप वर्ल्ड वाइड वेब में देखो, WWW इज द कंसोर्शियम which gives a standard for your markup language HTML XML, कि वहाँ पे वो स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं कि ओके आपको अगर वेब पे काम करना है तो आपको ये एक स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर यूज़ करना पड़ेगा. आप टैग्स बनाओगे, यूजर डिफाइंड टैग्स बनाओगे, बट दैट शुड बी रजिस्टर्ड विद WWW. सिमिलरली जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके लिए एक अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है. दिस इज बेसिकली टू डिफाइन द स्टैंडर्ड, कि ये नहीं होना चाहिए कि सम अप विल कम अप विद न्यू सी कंपाइलर और उसने कुछ नॉमेनक्लेचर को फॉलो ही नहीं किया. तो अगर आप देखो तो सी के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं. हमारे पास बोरलैंड कंपाइलर है, हमारे पास टर्बो सी है. उस दिन भी मैंने आप लोगों को बताया था कि देयर इज अ ह्यूज वैरायटी ऑफ कंपाइलर्स व्हिच आर अवेलेबल, बट द स्टैंडर्ड वन इज बाय एनसाई, बाय अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट. तो आप जब जीसीसी कंपाइलर पे वर्क करते हो, यूनिक्स के किसी फ्लेवर पे वर्क करते हो विद दैट कंपाइलर, then that is always by ANSI C standards. But somewhere when you are having other compilers which are available in market, there can be a possibility some of the things are missing. For example, that day someone or some one of you were asking, ma'am IO stream का सपोर्ट है, stdio का नहीं है, या stdio के साथ ये फंक्शन चलेंगे नहीं चलेंगे, बिकॉज दैट इज बेसिकली द ईज ऑफ यूज. लोगों ने बहुत सारे कंपाइलर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे स्टैंडर्ड को ही फॉलो करें. ठीक है, तो जब भी हम एक स्टैंडर्ड की फॉर्म की बात करते हैं, सो इट इज ऑलवेज वाया एनसाई सी स्टैंडर्ड. तो आपको बहुत सारे इशू आप फेस करोगे. किसी में फ्लोट काम नहीं करेगा, किसी में डबल का कुछ इशू आएगा कंपाइलर में. समवेयर यू विल फाइंड कि मैम ये वाले फंक्शन से वर्क नहीं कर रहा है, दिस लाइब्रेरी इज एक्सेसिबल, बिकॉज दे आर मेकिंग दोज थिंग्स अवेलेबल ओनली फॉर ईज ऑफ यूज. फाइन. तो जो भी आप कंपाइलर यूज कर रहे हैं, प्लीज टेक केयर what standard it is following and what all function it is providing you to work on that, because there can be a possibility some functions is not available for you and some libraries are not possible, and other than that some solution is given in another library. So you have to look for those solution if you are using any customized compiler. And whenever you will face these kinds of problems, I'll definitely let you know कि उसका issue क्या है. ठीक है, तो जब भी हम एक स्टैंडर्ड की बात करेंगे, दैट इज ऑलवेज बाय एनसाई सी स्टैंडर्ड. और आप बुक में भी देखोगे, बुक में बहुत सी चीज़ों में क्लियरली मेंशन होगा बाय एनसाई सी स्टैंडर्ड. एंड समवेयर दे विल राइट कि टर्बो सी में कई बार हमें गेट सी एच ही लगाना पड़ता है, कई बार हम गेट सी एच लगाते हैं, कई कुछ कुछ कंडीशन में हम कुछ और लगाएंगे. वो सब हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज दोज आर द इश्यूज रिलेटेड टू दोज derived compilers which are there. Clear? So if you see this complete operating system, which is Unix, is completely written in C, and it is being defined as system programming language. आपको याद हो तो मैंने last lecture में discuss किया था कि software is being divided into two categories, system software and application software. तो अगर आप C programming language को देखो तो उसमें majorly operating systems लिखे गए हैं. तो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स को क्रिएट कर पा रहे हैं, सो वी आर पुटिंग दैट लैंग्वेज इनटू अ कैटेगरी विच इज सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज वी कैन राइट ऑपरेटिंग सिस्टम बाय दिस ऑल्सो. आप अगर लाइनेक्स के जो यूनिक्स के फ्लेवर्स देखते हो, लाइनेक्स है, सेंटोस है, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ लाइनेक्स एनवायरनमेंट इज देयर, रेड हैट इज देयर for customization and for you can say license properties there with Red Hat Linux. But वो क्या है? Those are the derivation out of this same environment which is Unix, but they have certain commercial usage of that, so they are putting into the different category. So those kinds of things is definitely possible with C language. That is why it is always a starting language in computer science and engineering, so that you should understand what exactly we are having in C programming language. Fine. And then why we are what are the usage. So if you see, we can write operating system, compilers, assembler, editors, spoolers are there, print spoolers basically where you pool your jobs, then your drivers, network drivers, databases जो आप RDBMS देखते हो, SQL देखते हो, आप MS Access देखते हो, those databases which are there,
SQL, MySQL, NoSQL, and SQL Server. All those databases further again written in, can be written in C programming language. And then we are having interpreter also. So if you see, the major things related to language interpretation and working on those operating system environment is written in C programming language, and can be possible that you may also write those kinds of things if you are good with this C programming language. So all these things are possible with C. That is why we are learning it. And to learn to write those kinds of things, you require a lot of knowledge regarding memory, regarding input, regarding output. Now is it clear why we are learning C? And who all are using C programming language? Is it clear? Any doubt to Yes, anyone? ma'am. Any doubt to anyone? Any new student into the class today? Because I think some new student also have been added to the class. So if any new student is there, please tell me so that I can, if I face any issue, because for you people, we may take some more lecture for you so that you can align with the same class. Okay, now this thing we have discussed earlier also, but today we'll be मैम discussing. हाँ बेटा बोलो. हाँ हाँ बोलो. मैम व्हाट आर प्रिंट स्पूलर्स? प्रिंट स्पूलर इज समथिंग, देखो आप जब प्रिंटर अटैच करते हो, है ना, तो आप उसके बाद जॉब सेंड करते हो. एंड प्रिंटर जो है वो आपके पूरे लैब में एक शेयर्ड भी हो सकता है ना. होता है ना कि क्लास जब लैब्स में क्या करते हैं, वो एक प्रिंटर लगा देते हैं जो कि 30 सिस्टम में शेयर हो रहा होता है. एंड यस यू मैम। स्टार्ट सेंडिंग योर जॉब्स. जब आप अपने जॉब सेंड करते हो तो वो जॉब्स क्या होते हैं, कहीं ना कहीं पे जाके आपके कहीं पे पूल हो रहे होते हैं 1 2 3 करके, कि जॉब 1 की जॉब 2 इज पेंडिंग, जॉब 1 इज कंप्लीटेड. ठीक है, या वो दिखाता है जॉब 1 इज फेल्ड. तो जो आपने प्रिंट करने के लिए जो रिक्वेस्ट भेजी है, उसको कौन टेक केयर करेगा इन मैसेज क्यू, सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ अ मैसेज क्यू. उसको करने के लिए भी हम स्पूलर्स लिखते हैं, मीनिंग हम कहीं पर उसको पूल करके रखेंगे, एंड देन वन बाय वन दोज जॉब्स विल बी एग्जीक्यूटेड टू प्रिंट योर डॉक्यूमेंट. सो उस टाइप के पूलर्स, प्रिंट स्पूलर्स भी होते हैं, मैसेज पूलर्स भी होते हैं, और हम मैसेज क्यू भी क्रिएट करते हैं. वो सब हम सी प्रोग्रामिंग से क्रिएट कर सकते हैं. नाउ इज इट क्लियर? यस मैम। Now, this is your C program structure. We have discussed in last lab also that you will be having your editor or IDE. This is the development environment. आप अगर एक टर्बो सी कंपाइलर यूज़ कर रहे हो या ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहे हो, तो उस एडिटर को जहाँ पे आप कुछ लिखोगे, दैट इज़ एक्चुअली योर एडिटर, और वेयर यू विल बी राइटिंग योर सोर्स कोड और द इंस्ट्रक्शंस, वो आपका एडिटर है. ठीक है, तो अगर हम टर्बो सी कंपाइलर पे वर्क कर रहे हैं, द स्क्रीन दैट वी आर गेटिंग टू राइट समथिंग इज योर एडिटर, वेयर यू विल बी राइटिंग योर सोर्स कोड. एंड source code is nothing but sequence of instructions that you will be writing. And those program or those source code will have extension at .c. ठीक है, .c extension को हम use करेंगे, whereas your header files will be having an extension which is .h. ठीक है, जो हमने बोला था ना कि stdio.h को हम include करेंगे, iostream is there, then you are having conio.h is there. So those are the header libraries, header files which is having predefined function which you are using, right? So always we will be writing our source code with the file name, and extension will be .c, and we can include header files with the extension h. But how we will be adding them? We will be adding them with the help of a preprocessor. Preprocessor क्या था? Preprocessor was hash. Hash include जो हमने लिखा, वो अगर आप देखोगे तो C की स्टेटमेंट से डिफरेंट है. ठीक है, जो हम C की स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उससे वो डिफरेंट है. जहाँ पे हमने बोला कि हम कुछ इंक्लूड करना चाहते हैं, तो वो जो आप हैश इंक्लूड जो लिख रहे हो, दैट इज़ अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. एंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैज़ वेरी मेजर रोल प्ले इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जहाँ पे आप फाइल इंक्लूजन कर सकते हो, आप अपना खुद का एक प्रोसीजर डिफाइन कर सकते हो,
आप कुछ स्पीडी और परफॉर्मेंस अगर अचीव करना चाहते हैं, एक्सटर्नल फाइल्स को इंक्लूड करना चाहते हैं, वो सब हम प्री प्रोसेसर के थ्रू करते हैं, एंड वी विल बी सीइंग दैट इन डिटेल ऑल्सो, राइट। तो अभी जो हम यूज़ करेंगे विच इज़ बेसिकली फॉर इंक्लूडिंग द फाइल और रिप्लेसिंग सिम्बल्स, मीनिंग अगर मुझे कुछ कांस्टेंट डिक्लेयर करने हैं, कांस्टेंट्स को यूज़ करना है, देन आई विल बी हैविंग दोज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. Then you will be having your compiler. Once you will write your code with the help of preprocessor or with the help of C programming statement, you will be compiling them. ठीक है, कंपाइलर से आप उसे कंपाइल करोगे. कंपाइलर will tell you and notify you with all the errors which are there. Because अगर आपने कोई सिंटेक्स एरर की है, वो सारे आपको कौन नोटिफाई करेगा? Your compiler is going to check all the instructions which has been written, and it will be checked amongst the against the semantics and the rules. जो भी डिफाइंड स्ट्रक्चर सीखा है उसके अगेंस्ट वो उसे चेक करेगा. ठीक है, जैसे मैं अभी देख रही हूँ, अभी हम क्लास कर रहे हैं. क्लास को करने के लिए देयर इज अ डिफाइंड सेमेंटिक. You should be part of that class. There should be a name registered against this section. Fine. And to attend this lecture, you should be part of this MS team. Once you are part of that MS team, there is a scheduled time for that, for your lecture. Once I'll start with the lecture, then only you will be able to attend the lecture for C. That is a defined rule to attend a lecture. Similar thing, there is a defined semantics and rule behind your C programming language also, which is being directed to the compiler, and compiler उसको check करेगा कि आपने वो डिफाइंड सेमेंटिक्स और रूल को फॉलो किया है या नहीं, और अगर नहीं किया है, इट विल नोटिफाई यू एज एन एरर कि सेमी कोलन इज मिसिंग, जो फंक्शन आप कॉल कर रहे हो दैट डेफिनेशन इज नॉट प्रॉपर. सो ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज एरर विल बी नोटिफाइड बाय द कंपाइलर, एंड वंस your program is fine, there is no error, there is no issue with your program, then that compiler will convert it into a object file. Fine, and that object file will be .o extension file जो कि हमारी जनरेट होती है, या फिर हमारी जनरेट होगी .obj फाइल. ये डिपेंड करेगा कंपाइलर पे कि आप कंपाइलर कौन सा यूज़ कर रहे हो. तो उसमें आपकी .obj या .o फाइल आपकी जनरेट होगी, एंड दैट obj फाइल इज अ फाइल विच इज executed on your machine. जो आपने कोड लिखा है उस कोड को वो उस वे में इंटरप्रेट कर देगा या कन्वर्ट कर देगा जो कि मशीन को अंडरस्टैंडेबल होगा. दैट विल बी योर ओबीजे फाइल, एंड दैट ओबीजे फाइल इज फर्दर लिंक्ड विद दोज लाइब्रेरीज. आप जो लाइब्रेरीज आपने इंक्लूड की थी, हैश इंक्लूड, conio.h, stdio.h, iostream.h, उसके कुछ फंक्शंस आप जो कॉल कर रहे हो, उन सबको कौन लिंक करेगा? दैट लिंकर विल लिंक ऑल दोज फाइल with your code with the help of linker, and once those linking has been done, your executable code will be ready, and those executable code will be further loaded into the memory, and then your CPU is executing and executing them, and you are getting the output. This is the procedure through that you will be having your complete C program which is under execution. This shared library, this DLL, you can also create your program as a shared repository. कि आप ये चाहते हो कि नहीं, मेरा जो मैंने जो प्रोग्राम बनाया है या प्रोजेक्ट बनाया है, इट शुड बी पार्ट ऑफ सम शेयर्ड लाइब्रेरी. जैसे .h फाइल है, वैसे ही मेरा प्रोग्राम भी कहीं पर शेयर होना चाहिए, यूज़ होना चाहिए. तो आप उसको कैसे बनाओगे? यू विल बी हैविंग दो शेयर्ड लाइब्रेरी इन द फॉर्म ऑफ इधर .dll और .so. और आपने देखा होगा जब भी आप कुछ एग्जीक्यूटेबल कोड रन करते हो, उसमें अगर कोई DLL फाइल मिसिंग है, वो नोटिफाई करता है कि दिस DLL फाइल इज मिसिंग, बिकॉज दैट इज अ शेयर्ड लाइब्रेरी. आपने कुछ कोड बनाया, आप उसको फर्दर देना चाहते हो एज अ प्रोडक्ट टू समवन, तो आप उसका या तो .so फाइल बनाओगे या आप बनाओगे .dll. हमेशा वैसे नॉमेनक्लेचर में हमेशा DLL फाइल्स को हम क्रिएट करते हैं और वो हम यूज़ करते हैं. अभी जो आप करोगे लैब्स में, that is only obj file and exe file which will be executed. But suppose you are working in a production environment where you are creating certain program which should be shared, which should be used with multiple user. In that case, you will go for those shared library concept also with the help of this DLL file.
And once that TLL will be ready and it will be executed, that will be interacting with your CPU, and those programs will be executed into the memory. Is it clear? Any doubt to anyone in this part? No, ma'am. It is clear? Every term is clear Yes, ma'am. related to execution and compilation? Okay. So, ma'am, So, हाँ बोलो. so, ma'am, the basic work of loader is to just load the program in the memory. यस यस यस. लोड देखो ये सब हमारे जो हमारा कंपाइलर है ना, जो हम बोलते हैं कि सी का जो एक हम जिस एनवायरनमेंट को यूज़ कर रहे हैं, उस एनवायरनमेंट में आपके पास कंपाइलर है, प्री प्रोसेसर है, लिंकर है, लोडर है. अगर आप HTML की बात करो तो वहाँ पे सिर्फ इंटरप्रेटर होता है ना. आप HTML के टैग्स ओपन करते हो, HTML हेड बॉडी फॉर्म, और उसमें जाके आप कुछ कोडिंग करते हो, and you simply open it in the browser. There is only one interpreter which is taking care of that. Whereas in case of your executable, which is C language or C++ language or Java language, there is always a compiler, linker, loader, and there can be a possibility preprocessor is there or something else is there. So it is always in these kinds of programming language, which is structured and which is procedural, it always have preprocessor, compiler, linker, and loader, and everyone has its own defined functionality. Loader is only talking about the mapping of your program into the memory, कि आपने अगर एक प्रोग्राम बनाया है तो वो भी तो मेमोरी में मैप होगा, तो उसको कौन कर रहा है? लोडर विल बी डूइंग दैट. लिंकर इज टू लिंक ओनली द libraries which are static libraries. Some libraries are there which are already there into the memory, those will be links. Compiler is to compile, preprocessor is to call those inclusion file which is required by that. ठीक है, तो हर एक का एक अपना डिफाइंड रोल है, और आप कभी भी इस सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते. ऐसा नहीं हो सकता कि पहले कंपाइलर आएगा फिर प्री प्रोसेसर आएगा. नो, it is always first preprocessor, then compiler, then linker, loader, and then the execution. Now is it clear? Any doubt? Clear, ma'am. Clear? Okay. So now we move towards the programming part. So C is a case sensitive language. Printf in a small, printf in capital is definitely having two different meaning, so you have to be very careful. अगर आपने एक वेरिएबल बनाया है तो स्मॉल आई एंड कैपिटल आई विल हैव डिफरेंट मीनिंग. सो बिकॉज इट इज़ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो वहाँ पे हमें ये लोअर केस एंड स्मॉल केस और चेंज केस का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस वे में डिक्लेयर कर रहे हैं, उसी वे में हमें उसे यूज़ करना है. एवरी स्टेटमेंट विल ऑलवेज एंड विद द सेमीकोलन, मीनिंग जब भी आप कुछ लिख रहे हो, whether it is variable declaration or execution, it is always end with a semicolon. Multi statement can be one the same line, can be on the same line. मीनिंग ये हो सकता है कि अगर छोटी छोटी स्टेटमेंट है तो मैंने एक ही लाइन में उनको डाल दिया. ऐसा नहीं है कि आप उसको हर बार एक न्यू लाइन में ही ऐड करोगे. यू कैन हैव मल्टीपल सी स्टेटमेंट इन अ सिंगल लाइन. That is also there with the help of C programming, but it is not a good practice because reading that code afterwards will be very difficult for you. So always write each and every statement in a new line, which makes your code more understandable and readable. White spaces are ignored, टैब स्पेसेस एंड स्पेस बार आर इग्नोर्ड. सो इसमें थोड़ा ध्यान रखना कि जब भी आप दे रहे हो, जब भी हम कोई फंक्शन वगैरह देते हैं, तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि किस वे में लिखा गया है. ऑल्दो इट इज़ बीइंग इग्नोर्ड, बट व्हेन वी आर राइटिंग फंक्शंस इन दैट केस यू नीड टू फॉलो द complete semantic for that. Statements can continue over multiple lines. Similar thing कि आप एक ही लाइन में बहुत सारे स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं, बट यू शुड नॉट डू दैट. Comments is basically a useful information which is not at all executable. This is the information only for the user. Those who are writing the program, those who are creating this program, that information as a comment will be useful for that. So you can have a single line comment or you can have a multiple line comment. तो अगर आप multiple line comment बनाओगे तो it is always a slash and a star. उससे ये स्टार्ट होगा और एंड होगा स्टार एंड स्लैश. ये आपका मेन वो है जिसके थ्रू आप कमेंट डाल सकते हो. एंड कमेंट हम जो डालते हैं वो हमेशा हम डालते हैं फॉर द प्रोग्रामर, और
अभी हम क्योंकि बहुत छोटी छोटी लैब एक्सरसाइजेस करेंगे उसमें इसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, बट अगर आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप एक बल्कि प्रोग्राम लिख रहे हो, इन दैट केस यू शुड फॉलो दिस प्रैक्टिस कि आपने ये फंक्शन डिक्लेयर किया तो उसका क्या मीनिंग है, एंड अगर कुछ आप डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड कर रहे हो तो व्हाट इज द रोल ऑफ दैट. दिस स्लैश स्लैश इज फॉर एंड ऑफ लाइन कमेंट. अगर हम एक सिंगल लाइन कमेंट बनाने जा रहे हैं तो हम इसमें यूज करेंगे स्लैश स्लैश, एंड अगर हम इसको मल्टी लाइन कमेंट बना रहे हैं तो हमेशा हम यूज करेंगे स्लैश एंड स्टार्ट. इसको हम बोलते हैं स्लैश एंड देन वी आर हैविंग दिस स्टार्ट विच इज एस्ट्रिक्स अवेलेबल ऑन योर कीबोर्ड. तो उसके थ्रू हम इसको मल्टी लाइन कमेंट और single line comment बनाएंगे. Then you are having your statement which is hash include stdio.h, which is a preprocessor directive. It is always starting with hash. हमेशा हम इसको hash से start करते हैं. hash का meaning क्या है? hash का meaning ये है कि हम यहाँ पे एक preprocessor use करने वाले हैं which is other than C programming language, right? This is a preprocessor directive which says that you will be including one header file which is by the name stdio.h. अब देखो जो C है C ने by default आपको input output के लिए stdio.h को दिया है. अगर आप C++ में देखोगे for C out, for C in, for rest of the function, that is iostream.h. फाइन. सो आपके कंपाइलर में अगर आपने C++ कंपैटिबल कंपाइलर लिया है तो अगर आप iostream को भी यूज कर रहे हो ना, it won't give you any error because all those functions will be again supported. But if it is specific to C programming language, then you are having this library which is hash include stdio.h. So don't get confused कि मैम मेरे में ये चल रहा है इसके में ये क्यों चल रहा है, because that is dependent upon the compiler. If you are having C++ compatible, iostream, stdio or io.h is also there. Lots of libraries are available only for input IO. Only thing you need to see what all is compatible with the compiler. So by default, the library for standard input output in C is stdio.h. Clear? Then we are having this main function, which is the entry point of program execution. Without this, your program is not going to be executed because this is the instantiation point of your program, जहाँ से आपका compiler इसको start करेगा. And it is always having a return value as an integer. और उस return value का क्या meaning है? हम हमेशा यहाँ पे लिखेंगे return 0. This is an instruction to the compiler that my program has been executed successfully. अगर ये other than 0 है, that means there is an issue and that issue will be notified to the compiler. हमेशा ये value 0 और 1 होती है. 0 है that means successful compilation. If it is not 0, that means there is an issue with the execution. So the value will be return 1. So हमेशा हम क्या कर रहे हैं, ये function की return value है. ये आपका function है main. ओपन क्लोज ब्रैकेट का मीनिंग है कि हमने एक फंक्शन स्टार्ट किया है. ये इसका रिटर्न वैल्यू है. रिटर्न वैल्यू में क्या है, या तो 0 होगा या 1 होगा. 0 का मीनिंग क्या है, 0 का मीनिंग यह है कि सक्सेसफुल है, और 1 का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आकर हुई है. तो सबसे पहले आप लिखते हो कमेंट्स. कमेंट सेक्शन आपके पास आता है. फिर आपके पास आता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. फिर आपके पास आता है मेन फंक्शन, जहाँ पे आप अपनी सारी स्टेटमेंट्स लिखोगे. सी की स्टेटमेंट, to take input, to write something, all those things will be your C programming statement. And then we are having this return value. If it is 0, that means it is successful, otherwise it is not successful. ठीक है. और प्रोग्राम क्या है? This program is a sequence of instructions, basically your programming statements, जो भी हम लिखेंगे C के फॉर्म में. Yes, any doubt? Yes, ma'am. हाँ बोलो. Ma'am, in C++, we would write void main so that we do not require return statement. Is it the same case in C also? देखो, ANSI C standard is always says you that integer main will be there. ठीक है. अब अगर आप जैसे बोल रहे हो void main है, ठीक है, तो void main का क्या मीनिंग है? It is not having any return value. void का मीनिंग होता है nothing. ठीक है. तो उस वे में उसको डिफाइन किया गया है.
तो आप उसमें चेक करो कि आपके पास क्या क्या नॉमेनक्लेचर यूज हो रहा है। जब भी आप एक कंपाइलर ओपन करोगे वहाँ पे एक आपके पास एक डिफाइंड टेम्पलेट होती है, उस डिफाइंड टेम्पलेट को रन करो एंड चेक इट कि वो उसमें क्या दे रहा है आपको। ठीक है, with NSYC standard it is always integer main and return value will be always 0। ठीक है, तो वो आपको टेक केयर करना पड़ेगा। राइट, Okay, यस यस शांतनु। Shantanu, you have a doubt? Yes, Anshuman? Excuse me, ma'am. हाँ बेटा। Ma'am, could you just go back to the previous slide? Yes, sure बेटा। बेटा हाँ Ma'am, बोलो। in the comment part, there are 2 stars after the slash, so it is allowed. तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ से कमेंट स्टार्ट हुआ है, इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे मैं कमेंट लिख रही हूँ। ठीक है, इसका जस्ट ये एक मीनिंग है। Okay. ठीक है, जब भी ये स्टार्ट करोगे तो ये इसी से स्टार्ट होगा, स्लैश एंड स्टार्ट है, और स्लैश और स्टार्ट यहाँ पे स्टार एंड स्लैश से ये क्लोज होगा। इसके बीच में जो लिख रहे हैं इसको जस्ट मैंने नोटिफाई किया कि ये कमेंट है। ठीक है, Okay, ma'am. यस अंशुमन, you are also having some doubt? No, ma'am, clear. क्लियर है। देखो मैं जब पढ़ा रही होती हूँ ना तो मुझे ये वाली स्क्रीन विजिबल नहीं होती है जहाँ पे आप अपना हैंड रेज कर रहे हो, मुझे सिर्फ पीपीटी विजिबल होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन है आप मुझे वहीं के वहीं रोक सकते हो। ठीक, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ जब स्लाइड फिनिश करूंगी तब मैं आपकी ये वाली स्क्रीन देखूंगी जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप हैंड रेज कर रहे हो। ठीक, तो एनी डाउट इज देयर यू कैन इन बिटवीन ऑल्सो यू कैन नोटिफाई दैट। फाइन, नाउ now this program is a sequence of instructions which is your programming statements, and those are the executable one, those are the declaration, those are the initialization one. So we always have this execution one after the another, एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा उसके बाद सेकंड होगा, एंड दैट इज व्हाई दिस सेमीकोलन इज देयर। सेमीकोलन इज द एंड ऑफ स्टेटमेंट, मीनिंग कंपाइलर को बता रहा है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। जैसे सेमीकोलन लगा उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ, उसके बाद सेमीकोलन लगा, सेमीकोलन के बाद थर्ड स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ, फिर सेमीकोलन लगा। So it is always a sequential execution of a statement one after the another, which is this is how your program is going to be structured. Fine, and this is this is your link for your ऑनलाइन सी कंपाइलर। फाइन, जिसके थ्रू आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक, अगर आपके पास ऑलरेडी टर्बो सी है आप उसको यूज़ करो, अगर नहीं है कंपाइलर तो आप डायरेक्टली इस लिंक पे जाके अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हो। ठीक है, so if you wanted to note it down you can note it down, or you can open this link also in your screens. Clear? जिनके पास अगर अभी कंपाइलर नहीं है वो इसको यूज़ कर सकते हो, और अगर है तो आप डायरेक्टली यूज़ कर पाओगे अपने टर्बोसी कंपाइलर के ऊपर या बोरलैंड कंपाइलर के ऊपर। ठीक है, सो हैव यू नोटेड इट डाउन, और शुड आई गिव दिस कंपाइलर इन योर चैट विंडो ऑल्सो? Yes, ma'am, please give it in the chat window. ओके ओके फाइन। So I have sent you the link in the chat box that you can open. Is it visible to all? Yes, ma'am.
Now this is your first program which you have already seen that first there is a comment. First C program as a comment. हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, इसके आगे डॉट नहीं है ये, क्योंकि हमने कॉपी किया है स्लाइड के अंदर, तो उससे एक वो बुलेट आ गया है, बट ये आप यूज़ नहीं करोगे। आप सिंपली हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच लिखोगे, विच इज़ टू परफॉर्म आई ओ ऑपरेशन। जितना भी आपके प्रिंट एफ, स्कैन एफ के फंक्शन मिलेंगे वो आपको एस टी डी आई ओ डॉट एच से मिल रहे हैं। आई ओ स्ट्रीम से आपको सी इन एंड सी आउट मिलते हैं, विच इज़ compatible to C++ programming also, but they gives the support of this standard input output of C also। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप कोई भी लाइब्रेरी को यूज कर सकते हो, बट अगर सिर्फ C का कंपाइलर है तो आप stdio.h यूज करोगे। देन यू आर हैविंग दिस int main, ऑलवेज प्रिसीडेड बाय विद दिस ब्रेसेस। जो आपके ब्रैकेट्स दिख रहे हैं वो जरूर लगेंगे, इसमें ध्यान रखना। इसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि ब्रैकेट को गलत कर देते हैं। एंड ऑलवेज स्टार्ट्स, इट ऑलवेज प्रिसीड विद दिस कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस जरूर लगेंगे। आप इसको सेम लाइन में भी रख सकते हो और आप इसको एक न्यू लाइन पे भी डाल सकते हो, विच इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर मेन फंक्शन। दिस इज द फंक्शन टू राइट समथिंग ऑन द कंसोल। कंसोल का मीनिंग क्या है? जो आउटपुट विंडो मुझे मिलती है जहाँ पे मैं इसको रन करूँगी, दैट इज माई आउटपुट विंडो। फाइन, तो वहाँ पे मैं कुछ प्रिंट करना चाहती हूँ, हेलो वर्ल्ड। सो दैट इज माई फर्स्ट प्रोग्राम जिसको कि मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ, एंड देन आई एम हैविंग द रिटर्न वैल्यू एज 0। बिकॉज अगर मेरा प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है तो मैंने नोटिफाई कर दिया 0 से। अगर कुछ इशू होगा तो वो कंपाइलर पे उसको स्टेटमेंट दे देगा कि देयर इज एन एरर एंड दैट विल बी नोटिफाइड बाय द कंपाइलर। ठीक है, अब आपने इसको क्लोज कैसे किया है? विद द हेल्प ऑफ दिस कर्ली ब्रेसेस। यहाँ से आपने स्टार्ट किए थे, यहाँ पे आप इसको एंड कर रहे हो, इसको जरूर ध्यान रखना। अगर आप एंड नहीं करोगे तो आपको एरर देगा। ईच स्टेटमेंट विल हैव अ सेमीकोलन टू एंड द स्टेटमेंट, ये मैंडेटरी है। ठीक है, प्रिंट एफ में अगर पी कैपिटल कर दिया तो एरर है, इंट में आई कैपिटल कर दिया तो एक एरर है, बिकॉज इट इज द केस सेंसिटिव। तो इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखना जब आप प्रोग्रामिंग करोगे। ठीक है, then what is the meaning of printf? This is to call your function which is printing to print the string। string का meaning क्या होता है? जो आपके कैरेक्टर्स हैं। देखो, हम जो डेली लाइफ में काम करते हैं, वी आर स्पीकिंग समथिंग, राइट? हम जो बोल रहे हैं, जो टेक्स्ट हम बोल रहे हैं, वो टेक्स्ट क्या है? अगर हम उसको इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लेके चलें तो वो हमारे कुछ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं, है ना, अल्फ़ाबेट्स हैं, जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टर्स। वो कैरेक्टर्स को हम जब हम एक लाइन के फॉर्म में लेके चलते हैं, एक लॉन्ग, उसके कैरेक्टर का मीनिंग है सिंगल, एच का मीनिंग है सिंगल कैरेक्टर। पर जब मैंने हेलो लिखा तो उसमें ई भी है, एल एल भी है, ओ भी है। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है जिसको हम ट्रीट करते हैं एज अ स्ट्रिंग। ठीक, अगर आप कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो, आपने कुछ बैंक का ट्रांजैक्शन करना है, आप ट्रांजैक्शन करने गए, वहाँ पे आपके लिए आपका अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ, ठीक है, आपका फाइनल आपका अमाउंट कितना है अकाउंट में, आपके लिए तब वो एक न्यूमेरिक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे बैंक में इतना अमाउंट था, अब मैंने इतने की ट्रांजैक्शन करी, अब क्या बचा। ठीक है, तो डे टू डे लाइफ में जिस टाइप से हम वर्क कर रहे हैं उसी हिसाब से हमें बहुत सारे डेटा टाइप्स भी दिए गए हैं। अगर मैं प्रिसिशन पे वर्क करूँ, जहाँ पे मेरे लिए डेसिमल पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि नहीं, अगर 0.1 की भी वैल्यू अगर मेरी मिसिंग है तो एन इशू है। जैसे आप अगर देखोगे, जब आपकी क्लिनिकल रिपोर्ट्स आती हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, किसी टेस्ट के लिए जाते हो, वहाँ पे कई बार एक एक वैल्यू होती है विच इज़ ऑलवेज अ रियल इंटीजर, और वो होती है कि सिंपली वहाँ पे कोई प्रिसिशन वैल्यू नहीं है, बट समवेयर यू विल फाइंड प्रिसिशन वैल्यू ऑल्सो, एंड दैट प्रिसिशन वैल्यू इज ऑल्सो बीइंग सर्कल्ड कि नहीं नहीं नहीं, ये इतने अमाउंट से बढ़ रहा है तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज at that time that reading with precision is also very much important। तो वहाँ उस प्रिसिशन पे अगर हम काम करना चाहते हैं तो हमें उस टाइप के डेटा टाइप दिए गए हैं। अगर मुझे सिर्फ कैरेक्टर्स पे काम करना है तो मुझे उसका सपोर्ट दिया गया है। तो एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स यू द सपोर्ट ऑफ डेटा टाइप ऑल्सो टू deal with day-to-day tasks the way we are working. Similar way, those data type is also being provided to you, and according to your requirement you will be using them। ठीक है, तो जब भी हम कुछ प्रिंट करना चाहते हैं एज अ स्ट्रिंग, सम मैसेज, समथिंग ऑन द कंसोल,
the function will be printf. यहाँ पे आपने hello world लिखा. /n का मीनिंग है न्यू लाइन, कि जब भी आप कुछ एक नई लाइन लिखना चाहते हो, कुछ लाइन लिखना चाहते हो, उसको हमेशा एक न्यू लाइन में लिखो. तो /n, these are the switches. ये हमारे फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, जो कि हम यूज करेंगे. हमारे पास बहुत सारे हैं, वो जैसे हम प्रोसीड करेंगे विद द सिलेबस आई विल टेल यू. तो हेलो वर्ड हमने एक स्ट्रिंग लिखा न्यू लाइन के अंदर, बिकॉज ये एक स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग लिटरल इज ऑलवेज इनटू द डबल कोट्स. इसको हम हमेशा डबल कोट्स में रखते हैं. ठीक है, जब भी हम स्ट्रिंग लिटरल लेंगे हमेशा डबल कोट्स में आएगा. इस चीज का हमेशा ध्यान रखना. ये Excuse me, हमेशा. ma'am. हाँ बेटा, हाँ Ma'am, बोलो. can you please tell what we have to do with the link that you have shared in the chat box? अभी As अभी my बेटा network net. अभी उसका डेमो भी दिखाऊंगी बेटा, करूंगी उसको. ठीक है, Okay. वो ये है कि Okay. जहाँ पे आप अपने सी के प्रोग्राम कंपाइल कर सकते हो. ठीक है, Okay. Okay. so this new line is actually bringing the cursor to the beginning of next line. मतलब मुझे हर बार एक नई लाइन में अगर कुछ लिखना है तो मैं हमेशा यूज करूंगी /n. अगर आप नहीं लिखोगे, प्रिंट एफ लगा दोगे, तो वो तो करेगा ही. फर्स्ट लाइन तो हमेशा ही न्यू पे होगी, बट अगर इसके बाद मैं फिर से एक प्रिंट एफ लिखूंगी तो वो मर्ज हो जाएगा उसके साथ. तो इसलिए हमेशा हम /n लगाते हैं फॉर न्यू लाइन टू राइट समथिंग ऑन द कंसोल. क्लियर, ये इसका मीनिंग है प्रिंट एफ. Okay. You're asking something? किसी ने अपना शायद अनम्यूट किया था. कोई डाउट है बेटा? No, ma'am. Okay. मैम हाँ. मैम आपने स्लाइड पे बोला था कि when the P is capitalized it means something else in print. हम्म. Ma'am, what does that mean? देखो, स्मॉल केस सेंसिटिव का मीनिंग क्या होता है? Ma'am, केस सेंसिटिव का मीनिंग ये होता है कि मैंने लेटर्स को कैपिटल में लिखा या स्मॉल, है ना? ये मीनिंग होता है केस सेंसिटिव का. तो ये बोल रहा है कि लैंग्वेज केस सेंसिटिव है. मतलब अगर फंक्शन स्मॉल प्रिंटफ के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसी वे में ही उसको कॉल करना है. अगर मैंने कैपिटल प्रिंटफ लिख दिया ना तो वो गलत हो जाएगा. ठीक है, वो कॉल ही नहीं होगा, वो आपको एरर देता रहेगा. ये मीनिंग है केस सेंसिटिव का. नहीं मैम. सब. हाँ बोलो. Excuse me, हाँ. ma'am. हाँ बेटा. Ma'am, int main and return 0 are performing the same task as void main. बेटा void main जो आप बोल रहे हो ना, void main का जो आपका मीनिंग है कि there is no return value. ठीक है, Okay. int main का मीनिंग है कि हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि वैल्यू हमेशा, रिटर्न वैल्यू हमेशा 0 और 1 ही रहेगी. void का मतलब ये है कि ओके रिटर्न वैल्यू नहीं भी है तो भी कंपाइलर उसको कंपाइल करेगा. ठीक है, ये इसका मीनिंग है. Thank you, एक ma'am. तरीके से वो क्या कर रहा है ना, वो अपने कंपाइलर का ओवरहेड बचा रहा है कि हर बार वो चेक करे 0 और 1 को. उसने उस चीज को रखा ही नहीं, उसने सीधे उसको void main कर दिया. ठीक है, तो यही सारी जो अगर आप देखोगे ना, यही इंट्रिकेसीज हैं आपके कंपाइलर लेवल पे, कि वो अपने काम को ईज आउट करने के लिए ना इस टाइप की चीजें डाल देंगे. बट हमारा एनसाइसी स्टैंडर्ड हमेशा ये करेगा कि हमेशा इंट मेन होना चाहिए. दिस इज बाय द स्टैंडर्ड डेफिनेशन. हाँ बोलो. तो ऐसा करने से हमारा कंपाइलेशन टाइम कम हो जाता है. देखो बिल्कुल कम होगा, क्योंकि आप देखो हर बार उसमें एरर चेक लगा रहे हो. एक तो ये हुआ कि मैंने सीधे सीधे रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेक कर लिया. एक ये हुआ नहीं मैंने मैंडेट किया, नहीं एवरी फॉर एवरी कंडीशन देयर शुड बी वैल्यू 0 और वैल्यू 1, है ना? उसको आपने ईज आउट करने के लिए सीधे void main कर दिया. उसने अपना अपना एक तरीके से ओवरहेड बचा लिया कि ठीक है ये बार बार हम नहीं करेंगे, हम एक ही बार कर लेंगे. ठीक है. ठीक है मैम, थैंक यू. Ma'am, does that mean if we use void, the program can compile even if there's an error? No, it doesn't mean that. It only means that it is not notifying that compiler. It is only checking the semantics, and while execution it is not checking whether value is 0 or value is 1. Without error debugging, it never going to be executed. Clear? Yes, ma'am. Pragati, your case sensitive thing is clear? Yes ma'am. Okay. ये भी हम उसका भी दूसरे कोडिंग में इनपुट करके देखेंगे. ठीक है. So this is the meaning of printf. Return 0. आप यहाँ पे देखो, इसमें पढ़ोगे आप
terminates the main function and returns a value of 0 to the operating system. ठीक है, यहाँ देखो this is a return value which is going to the operating system. अगर आप देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक तरीके से वैल्यू जा रही है. फाइन. टिपिकली रिटर्न वैल्यू ऑफ 0 सिग्नल्स नॉर्मली टर्मिनेशन. ठीक है, मीनिंग आपका प्रोग्राम आराम से एग्जीक्यूट हुआ, नॉर्मली टर्मिनेट हो गया. Whereas non-zero value, which is usually 1, signals abnormal termination. मीनिंग या तो प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम है, या मेमोरी के साथ कुछ लिंक करने में इशू हुआ है, या आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे कुछ इशू आया है, तो वो क्या होगा, दैट इज अ एबनॉर्मल टर्मिनेशन एंड दैट वैल्यू विल बी नोटिफाइड बाय 1 which is non-zero value. This line is optional. रिटर्न 0 आपके पास इसमें ऑप्शनल बोल रहा है, बट ये हैबिट कभी भी मत रखना. जब भी आप सी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो, ऑलवेज राइट दिस रिटर्न सी स्टेटमेंट. ठीक है, क्योंकि पता है क्या होता है, जब हम डिफरेंट कंपाइलर्स के ऊपर जाते हैं, अभी हमारा वाला का आईडी ये बोल रहा है कि ओके डोंट राइट रिटर्न 0, बट जब आप एक्चुअल कंपाइलर्स पे वर्क करोगे, किसी एनवायरनमेंट पे जाओगे, वहाँ अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं है तो डीबगिंग करते करते दुखी हो जाओगे. So always follow the standard which is given and always write this thing. And this can be a possibility that if you don't write, it will work fine. But we should not put this habit. We always write this thing so that it should have the complete ending of main function. Yeah. अब समझ में आया मेन का क्या है? This instruction is directly for the operating system. क्योंकि वहाँ पे वो मेमोरी पे मैप कर रहा है, लोडिंग कर रहा है, लिंकिंग कर रहा है. तो अगर कोई एबनॉर्मल टर्मिनेशन का एरर होगा तो वो नोटिफाई हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को एंड दैट एरर विल बी जनरेटेड. नाउ इज इट क्लियर? रिटर्न 0. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now case sensitive part. It is a case sensitive language, so you need to be very clear. फंक्शन किस फॉर्म में डिक्लेयर किए गए हैं, कीवर्ड किस फॉर्म में डिफाइन किए गए हैं, क्योंकि कुछ रिजर्व कीवर्ड भी होंगे, वो जिस वे में लिखे गए हैं सी में बिल्कुल वैसे ही यूज करने हैं. ठीक है. अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स इज बेसिकली टू यूज टू स्टोर अ पीस ऑफ डेटा. देखो आप अगर मैं आपको ये बोलती हूँ, अभी मैंने आपको बोला कि ये लिंक है, आप इसको नोट कर लो. नोट करने के लिए क्या चाहिए आपको? एक पेपर चाहिए, एक पेन चाहिए. यू आर राइटिंग समथिंग एंड देन टू ईज इट आउट मैंने कहा कि ठीक है मैं इसको चैट विंडो पे डाल देती हूँ. आपने सिंपली क्लिक किया और वो चला गया. बट वो चैट विंडो पे जहाँ पे मैंने डाला वो क्या है? दैट इज अ शेयर्ड स्टोरेज विच इज विजिबल टू ऑल. वो सभी को दिख रहा है कि ओके मैम ने कुछ मैसेज डाला एंड इट इज विजिबल टू ऑल. बट फॉर दैट आई नीड वन कंटेनर. मुझे कुछ ऐसा चाहिए जहाँ पे मैं जाके लिखूंगी. सिमिलर थिंग, to do your task, you need certain area of memory which is reserved to keep that particular value. अगर मैं ये बोल रही हूँ कि आप इनपुट ले रहे हो बट वो इनपुट कहीं पे स्टोर भी तो होना चाहिए ना ताकि आप उसको रेफर कर पाओ, उसको प्रोसेस कर पाओ. तो हमारे पास इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस व्हाट वी आर हैविंग वेरिएबल्स which is name value pair, and these variables are वो हैप्पी पीस डे. Very good. So this variables is actually your named value pair where you are storing certain things. आप उसका एक नेम बनाओगे क्योंकि ये मेरे वेरिएबल का नाम है और उसमें मैं ये वैल्यू स्टोर करने वाली हूँ. ठीक है. बट दैट स्टोरेज डिपेंड्स अपॉन द डेटा टाइप. व्हाट इज द डेटा टाइप? जो आपको लैंग्वेज दे रहा है. ठीक है. हर एक लैंग्वेज ने आपको कुछ डिफाइंड डेटा टाइप्स दिए हैं और वो डिफाइंड डेटा टाइप्स को ही आप यूज कर सकते हो. ये नहीं कि आपने अपने दिमाग से बना लिया कि नहीं 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 ये मेरे हिसाब से तो ये वाला डेटा टाइप है तो मैं इसको बना लूंगा. नो, there is a defined set of data type. Through that you can create your variables and there is a defined semantic for that also. उनकी एक defined range होती है, उनको define करने का एक method होता है, उसमें कुछ values, उसके permissible values होती हैं जिनको कि हम deal करेंगे. जैसे कि अगर हम C में देखें तो हमारे पास जो data types हैं वो 3 parts में divided हैं. Basic, derived and user defined. बेसिक में अगर आप देखोगे तो इंट, फ्लोट, डबल, कैर, ये सारे हमारे बेसिक डेटा टाइप्स हैं जो कि हमें हमारा लैंग्वेज खुद प्रोवाइड कर रहा है, सी लैंग्वेज कर रहा है. जबकि हम डिराइव्ड में देखें, वी कैन हैव एरे ऑफ कैरेक्टर्स, एरे ऑफ इंटीजर, एरे ऑफ फ्लोट. ये भी हम कंसेप्ट पढ़ेंगे.
We can have pointer which is pointing towards integer, which is pointing towards float, which is pointing toward double. We can have function also which is defined function जो कि इन सब values को return कर रहे हैं या use कर रहे हैं. तो ये हमारे derived data types हैं. User defined में जो user खुद define करता है, जैसे हम enum declare कर सकते हैं, enumerator जिसे हम बोलते हैं. Then we are having structures, we are having unions. ये आप सब पढ़ोगे as you proceed with the help of these data types. हम एक combination बना देते हैं which is structure, union and enum. तो हमारे पास ये कैटेगरी गिवन है जिसके थ्रू हम डेटा टाइप्स डिफाइन करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कि हम अपने वेरिएबल्स बनाएं कि just excuse me for a moment. So basically in C programming, you are having basic data types as integer, character, float, double with higher precision. You are having boolean also as a data type. You are also having void. Void का meaning होता है which is returning nothing. That is also being defined as a data type in C also. तो हम उसको भी डिफाइन करते हैं, बट हम उसको ऑलवेज हम यूज करते हैं एज अ रिटर्न टाइप और एज अ डिफाइंड वैल्यू ऑफ दैट. एंड देन यू आर हैविंग सर्टेन वाइड कैरेक्टर्स ऑल्सो. जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग करोगे यू विल बी एबल टू सी दैट. और उसके बेस पे हमने बहुत सारे यूजर डिफाइंड बनाए हैं और डिराइव टाइप बनाए हैं. डिराइव का मतलब क्या होता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उससे निकाल लिया. जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ से हम एज को डिराइव कर सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ गिवन है तो मैं आपको बता दूंगी कि आज के हिसाब से, दिस ईयर के हिसाब से कि आपकी एज इतनी है, तो दैट इज अ डिराइव्ड वन. So similarly from integer, float, double and boolean, you have certain derived structure as arrays. You are having your pointers, you are having those kinds of derived data types in C also. ठीक है. तो बट हम जब भी हम क्रिएट करेंगे हम इन्हीं के थ्रू ही क्रिएट करते हैं. अब केस सेंसिटिव का मीनिंग क्या है, यहाँ पे इसने इंटीजर को स्मॉल लिखा है INT, फ्लोट में FLOAT लिखा है. आप अगर इसको कैपिटल कर दोगे तो वो उसको एक नए लिटरल की तरह ट्रीट करेगा और इट विल स्टार्ट गिविंग यू एरर्स, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा, वो उसको सिंपली एक स्ट्रिंग की तरह मान के चलेगा. ठीक है. तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे. ये इसका एक डिफाइंड वो है कि अगर इंटीजर है तो उसकी स्टोरेज कितनी है, 16 बिट की स्टोरेज है. ठीक है. मतलब 16 बिट तो वो लेगा ही लेगा अगर आपको कोई एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा है. ठीक है. और अगर आपके पास मॉडर्न सिस्टम है 32 बिट और 64 बिट, उसके अकॉर्डिंग वो उसको डिफाइन करेगा, बट ऑलवेज इट इज ऑलवेज हैविंग द साइज ऑफ 2 बाइट. एंड दिस इज द रेंज. रेंज का मीनिंग क्या है कि इसमें वैल्यूज कितनी तक आप डाल सकते हो, ये उसकी रेंज को डिफाइन करता है. और ये सब ट्राई जरूर करना, जब आप वैल्यू एंटर कर रहे हो तो वैल्यू में इसके बियॉन्ड भी जाके देखना. तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव अगर आप देखोगे, और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसे साइंड और अनसाइंड भी बोलते हैं, बट यहाँ पे सी में क्या है, सी में इसने इंटीजर दिया, ये बोल रहा है कि पॉजिटिव में भी इतनी रेंज है और नेगेटिव में इतनी रेंज है. ठीक है. तो इसी रेंज के अंदर आप वैल्यूज को फीड कर सकते हो. एंड प्लीज जब आप करोगे ना लैब में, आप जब मैंने आपको जो बुक दी है यशवंत कानेटकर, अभी मैं इस डेटा टाइप को और भी डिटेल में डिस्कस करूंगी जब हम एक्चुअल सी का स्ट्रक्चर्ड पार्ट पढ़ेंगे. आज क्योंकि हमें छोटा सा सी प्रोग्राम वगैरह रन करना है, उसके लिए बता रही हूँ. इन दैट केस वी विल सी ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो, एंड प्लीज चेक देम कि अगर इसके बियॉन्ड मैं कुछ लिख रहा हूँ तो क्या एरर आएगा. ठीक है. सिमिलरली फ्लोट, दिस इज बेसिकली फॉर प्रिसिशन, कि आप उसमें प्रिसिशन अप टू 7 डिजिट. ये देखो, ये इसका मीनिंग है कि हम डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स को ला सकते हैं, तो वो 7 डिजिट का आपको प्रिसिशन दिया है. एंड साइज इज ऑफ 4 बाइट्स. ठीक है.
हाँ बेटा बोलो। Ma'am, the range of int is not from -3 to 768 to 3 to 767. किसमें बेटा? Ma'am, of int. बेटा इसमें जो आपको डिफाइन किया गया है ये इसकी रेंज को नहीं, ये आपकी परमिसिबल वैल्यूज को बोल रहा है, ठीक है। और आप देखो इसको मैं 32 और 64 बिट के उसमें लेके चल रही हूँ। तो आप जब इंस्ट्रक्शन साइज अपना देखो, यहाँ पे मेंशन है 16 बिट का मशीन है, 32 बिट और 64 बिट, ठीक है। तो आप ये देखते हुए चलोगे। अभी हम इसका एक बहुत एक क्लियर कट टेबल देखेंगे जहाँ पे मैं बताऊंगी कि किस वे में आपकी रेंज डिफाइन होगी, ठीक। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना, इसमें आप देखना आपका इंस्ट्रक्शन साइज किस हिसाब से है, ठीक है। ये अभी बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए अभी मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि डेटा टाइप कितना, बट इसका जो एक्चुअल जो है मैपिंग टेबल की है वो मैं आपको दिखाऊंगी, उसके बेस पे एरर कंडीशंस भी आपको सारे बताऊंगी, ठीक है। आज ये सिर्फ समझो कि वेरिएबल क्या है और उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे फ्लोट का बताया। फ्लोट इज फॉर योर दिस प्रिसिशन पॉइंट ऑफ 7 डेसिमल। डेसिमल के बाद आप कितने पॉइंट पर लिख सकते हो ये आपका डिफाइन कर रहा है फ्लोट। देन वी आर हैविंग डबल। डबल में भी आप देखो 8 बाइट्स के ऊपर आपके पास डेटा है। प्रिसिशन रेंज आपकी इंक्रीज है एंड इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो आपके पास प्रिसिशन अप टू 15 डिजिट्स है। तो अगर आपको हायर लेवल पे कैलकुलेशंस करनी है तो आप डबल को यूज कर सकते हो, और प्रिसिशन पॉइंट बेसिक पे करना है तो आप फ्लोट यूज करोगे। कैरेक्टर, इट इज सिंपली टेकिंग 1 बाइट एंड परमिसिबल रेंज इज 0 to 225, ठीक है। और ये आपके कैरेक्टर सेट के ऊपर डिफाइंड है। तो हम इसके अंदर हम इतना पर्टिकुलर कैरेक्टर पे, और जब भी आप कैरेक्टर लोगे तो उसके कुछ एनसाई वैल्यू रहती हैं, दैट आल्सो विल सी इन डिटेल। जिसके और सी में सबसे ज़्यादा इशू आपके पास ये है कि यहाँ पे साइंड अनसाइंड सब कुछ एक साथ है। आप बाकी डेटा टाइप में देखो ना, फिर डिफाइंड होता है कि ये साइंड है ये अनसाइंड है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये क्यूमुलेटिव है। तो उसके केस में आपको इसमें सारी कंडीशन को चेक करना है, और इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे ही बनते हैं कि आपने क्या इन डेटा टाइप को चेक करके देखा है कि ये डेटा टाइप किस वे में वर्क करते हैं एंड किस कॉन्फ़िगरेशन पे किस टाइप से काम करेंगे। और अगर आप जितनी एरर कंडीशन चेक करोगे ना उतना ही आपको ये क्लैरिटी देगा। एंड वंस इट इज क्लियर विद एनी काइंड ऑफ डेटा टाइप यू कैन वर्क इन एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। So we'll see that thing in very much detail when we'll work on those things. So आज जो आपको करना है वो करना है ये प्रोग्राम। Write a program to find area of circle. Write a program to divide two numbers. Write a program to add two integers. ये आप लोग आज ट्राई करोगे। कैसे करोगे वो मैं अभी बताती हूँ। I'll share that environment. क्योंकि मुझे नहीं लगता सबके पास अभी कंपाइलर है। Ma'am, maybe do it on Ripple. हाँ हाँ आराम से, जिसके पास रिपल पे है वो उस पे कर लो। Ma'am, what is the syntax to write a function in C? क्या कह रहे हो बेटा? क्या बोल रहे हो बेटा? Ma'am, what is the syntax to write a function in C? सी बेटा, फंक्शंस के लिए हमेशा हमारे पास फंक्शन का नेम होना चाहिए। वी हैव आर्ग्यूमेंट टाइप्स, जो कि हम जो हमने ओपन क्लोज ब्रैकेट दिए हैं उसमें हम आर्ग्यूमेंट टाइप देते हैं, और उसके पहले फंक्शन के नेम के पहले हमेशा एक रिटर्न टाइप होता है। तो रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, ब्रेसेस में आपके आपके आर्ग्यूमेंट्स दैट यू वांटेड टू पास, एंड देन ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, दैट इज द सिंटैक्स फॉर फंक्शन। ओके okay, now let me show you that basic program. मैम आई हैव क्वेश्चन। हाँ बोलो बेटा। मैम जैसे सी आउट के लिए प्रिंटफ है तो सी इन के लिए क्या है? स्कैनफ। स्कैनफ और फिर स्लैश डी, और उसका मतलब क्या होता है? स्कैनफ देखो, स्कैनफ में मैंने उस दिन आपको बताया था, जब आप कुछ यूजर से इनपुट करवा रहे हो है ना, प्रिंटफ से बोलोगे प्लीज एंटर अ नंबर, स्कैन से आप स्कैन करोगे, बट वो जो एंटर नंबर करवा रहे हो वो किस टाइप का है, वो डबल है, इंटीजर है, फ्लोट है, वो बुलियन है, वो कैरेक्टर है, वो स्ट्रिंग है, उसके लिए स्कैनफ में बहुत सारे स्विचेस दिए गए हैं। परसेंट टाइप डी इज फॉर इंटीजर, ऐसे ही अनसाइंड के लिए अलग होता है, माइनस के लिए अलग होता है, यू कैटेगरी अलग होती है। स्कैनफ के पास बहुत सारे स्विचेस हैं, ठीक है। तो जब हम ये सारे इनपुट आउटपुट के हम जब डेटा टाइप डिस्कस करेंगे देन आई विल शो यू ऑल दो स्विचेस आल्सो। सो सी आउट सी इन जैसे हम वहाँ पे करते थे C++ में, यहाँ पे printf और scanf यूज करते हैं, ठीक है। बट scanf की इसमें बहुत ह्यूज कैटेगरी है विद ऑल दोज फंक्शनैलिटीज।
My screen is visible better? Yes, ma'am. Now this is the online compiler जिसका मैंने लिंक अभी आपको भेजा था online gdb.com and it also has lots of support of languages जैसे रिपल में आपको मिल रहा है बिल्कुल वैसे ही इसमें मिलेगा। तो अब इसमें हमने सबसे पहले क्या किया वी हैव रिटन अ मल्टी लाइन कमेंट जो कि आप देख पा रहे हो एक मल्टी लाइन कमेंट इसने डाला है ऑनलाइन सी कंपाइलर थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर दिया है राइट। उसके बाद द स्टेटमेंट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव विच इज हैश इंक्लूड stdio.h int main रिटर्न वैल्यू इज 0 क्योंकि हमने यहाँ पे इंट लिखा है। देखो ये भी फंक्शन है मेन इज अ फंक्शन जो मैं बोल रही थी ना रिटर्न वैल्यू देन द फंक्शन नेम एंड ब्रेसेस के अंदर आर्ग्यूमेंट ये आर्ग्यूमेंट्स का मीनिंग क्या होता है जो आप पास करना चाहते हो वैल्यूज को। तो अभी हम इसके डिटेल में नहीं जा रहे फंक्शन लिखना हम सीखेंगे। देन व्हाट आई हैव रिटन अ वेरिएबल बाय द नेम फ्लोट। अगर इसमें मैं f कैपिटल कर दूंगी तो इट विल ट्रीट इट एज अ समथिंग एल्स। तो मैंने एक पाई करके एक वेरिएबल बनाया फ्लोट पाई। ये वेरिएबल का नाम है हमने क्या बोला था कि नेम्ड वैल्यू पेयर है। दिस इज द नेम दिस इज द वैल्यू जहाँ पे आपके पास डेटा टाइप आपने डिफाइन किया फ्लोट का तो आपने 3.14 दिया। फिर से एक और वेरिएबल बनाया क्योंकि आपको पाई आर स्क्वायर निकालना है ना एरिया ऑफ सर्कल आप निकालना चाहते हो रेडियस ऑफ सर्कल। तो उसमें आप क्या कर रहे हो पाई आर स्क्वायर लगाओगे तो पाई की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए जो हम रेडियस को हम ले रहे हैं आर या तो हम इसको इनपुट कराएं लाइक ही वाज आस्किंग कि मैम सी इन सी आउट कैसे होगा। तो यहाँ पे या तो मैं यूजर सेंटर कराऊँ प्लीज एंटर द रेडियस वैल्यू देन आई स्कैन दैट वेरिएबल वैल्यू इनटू अ वेरिएबल एंड देन आई कैन यूज दैट। और मैं सिंपली अभी एक डिक्लेयर कर रही हूँ कि मैंने एक वेरिएबल बनाया रेडियस के नाम से। एनी नेम यू कैन गिव यू कैन सिंपली राइट इंट आर ऑल्सो एंड यू हैव गिवन द वैल्यू एज इक्वल टू 6 एनी वैल्यू यू कैन गिव सेमीकोलन से आपने इसको क्लोज किया। हर एक स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूटेबल होगा वो सेमीकोलन पे होगा। फंक्शंस कभी भी क्लोज नहीं होते फंक्शन को क्लोज कर दोगे तो यहीं के यहीं एंड हो जाएंगे ठीक है। देन यू हैव रिटन अ स्टेटमेंट एज printf द रेडियस ऑफ द सर्कल इज परसेंटाइल d। देखो ये इंटीजर वैल्यू है आप वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो ये आपका एक मैसेज है द रेडियस ऑफ द सर्कल इज परसेंटाइल d एंड आपने वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर दी है रेडियस। देखो यहाँ पे ये आउटपुट विंडो में प्रिंट हो रहा है द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 आपने वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराई है कॉमा लगा के रेडियस ठीक है। अगर सिंपली मैसेज प्रिंट करना है प्रिंट एफ में लिख के सीधे आप डबल कोट्स में अपना एक मैसेज प्रिंट कर दोगे ठीक है। देन आपने फ्लोट एक वेरिएबल बनाया जहाँ पे आप एक कैलकुलेशन करना चाहते हो पाई इंटू रेडियस ठीक है। और हमने उनको मल्टीप्लाई ये एस्ट्रिक्स क्या कर रहा है मल्टीप्लिकेशन कर रहा है मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू रिटर्न कर रहा है जो कि अब जब रिटर्न वैल्यू है जो प्रोसेस वैल्यू है इसको भी तो कहीं स्टोर करोगे तो आपने यहीं के यहीं एक वेरिएबल वैल्यू बनाया विच इज एरिया और यहाँ पे इसकी वैल्यू को सेव कर दिया ठीक है। एंड देन यू हैव प्रिंटेड दैट वेरिएबल वैल्यू विद द हेल्प ऑफ देखो यहाँ पे परसेंटाइल एफ लगाया है बिकॉज फ्लोट है तो फ्लोट के लिए हमें स्विच मिला है परसेंटाइल एफ फॉर इंटीजर वी हैव परसेंटाइल डी। ऐसे बहुत सारे हमारे पास प्रिंट एफ और स्कैन एफ में हमारे पास स्विचेस होते हैं। तो अगर हम इंटीजर की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो हम परसेंटाइल डी लिखेंगे अगर हम फ्लोट की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो परसेंटाइल एफ लिखेंगे देन वी आर रिटर्निंग दिस वैल्यू 0। और जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे ठीक है तो देखो ये कंपाइल हुआ एंड देन इट इज गिविंग यू द आउटपुट रेडियस ऑफ द सर्कल इज पहले ये वाला प्रिंट हुआ उसके बाद न्यू लाइन पे द एरिया ऑफ द गिवन सर्कल इज आफ्टर कैलकुलेशन दिस इज द वैल्यू विच इज कमिंग ठीक है। अब कोई मुझे इसका मीनिंग बता सकता है ये क्यों लिखा हुआ है फ्लोट इन ओपन क्लोज ब्रैकेट। तो किसी ने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा कि मैम ये क्या है Ma'am, because we are multiplying a float with a integer, so we need to define which data type will be the outcome. यस इसको हम लैंग्वेज में बोलते हैं टाइप कास्टिंग टाइप कास्टिंग एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इसका मीनिंग क्या है देखो मेरे पास ये एक कंटेनर है ठीक है दिख रहा है मेरी बॉटल दिखाई दे रही है वाटर बॉटल इज इट विजिबल Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये मेरे पास बॉटल है ये भरी हुई है अभी मान के चलो कि ये पूरी फिल्ड है ये मेरा ग्लास है ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरा इस वाटर बॉटल का पानी इस ग्लास में आ जाए
पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? No, ma'am. नहीं ना। सिमिलर थिंग, इंटीजर की रेंज स्मॉल है ना। इंटीजर में जो आप वैल्यू रिकॉर्ड कर रहे हो वो स्मॉलर है, फ्लोट का जो है वो बिगर है। जब आप इंटीजर इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे हो बट विद अ फ्लोट वैल्यू, देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि वो जो कैलकुलेशन है, क्योंकि उसमें 3.14 है, डेसिमल पॉइंट है, बट वो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? इंटीजर इंटीजर से, तो वो साइज बढ़ जाएगा। मैं इस बॉटल का पानी पूरे का पूरा ग्लास में नहीं डाल सकती, या तो मैं फिर से एक न्यू बॉटल लेकर आऊँ जिसके अंदर मैं इसको इक्वल कैपेसिटी का मुझे चाहिए। तो इक्वल कैपेसिटी कैसे आएगी? जब मैं उसको इस ग्लास को रिप्लेस कर दूंगी विथ लार्जर कैपेसिटी। ठीक है, तो इंटीजर की जो कैपेसिटी है वो बहुत स्मॉल है, बट जब इंटीजर इंटीजर फ्लोट के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जो आउटपुट आ रहा है दैट कैन हैव द कंप्लीट प्रिसिशन विच इज हायर देन द वैल्यू विच इज देयर। तो यहाँ पे हम एक्सप्लिसिटली उस कंटेनर का साइज बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इंटीजर इंटीजर मल्टीप्लाई तो हो रहे हो, बट इंटीजर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? फ्लोट से, एंड देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि वो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो हम इंटीजर पे नहीं लेंगे, हम ये बता रहे हैं कि इंटीजर हो रहा है बट इसका हमें साइज इंक्रीज करना है। तो दिस इज नोन एज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, कि मैं ये बता रही हूँ कि हो सकता है कि स्मॉलर वैल्यू भी आ जाए और हो सकता है ज़्यादा भी आ जाए, तो हम उसको एक्सप्लिसिटली बता रहे हैं कि जो भी आएगा ये हमेशा बिगर कंटेनर में जाना चाहिए विच इज ऑफ टाइप फ्लोट। अगर ये सिमिलर होता, इंटीजर इंटीजर पे होता और हमें पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू भी स्मॉलर रेंज की आएगी, तो हमें करने की जरूरत नहीं है, वो इम्प्लिसिट होता है, वो लैंग्वेज अपने लेवल पे करती है। बट यहाँ पे आप फ्लोट को मल्टीप्लाई कर रहे हो इंटीजर से, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, अदरवाइज ये प्रिसिशन वैल्यू आपकी लॉस हो जाएगी और कुछ जंक वैल्यूज में ऐड हो जाएंगी। तो हमेशा C++ और जावा में आप देखोगे वहाँ पे हमेशा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग रिक्वायर्ड होती है, कि अगर मेरा कंटेनर का साइज बढ़ने वाला है, अगर मैं नहीं बढ़ाऊंगी तो मेरे पास वैसे ही जंक वैल्यू या फिर लॉस्ट हो जाएगा। अगर मैं ये पूरा बॉटल का पानी इस ग्लास में रिप्लेस करने लगूंगी तो पानी सारा नीचे फैल जाएगा, है ना। समथिंग विल बी मिस्ड, वो जो डेटा है वो या तो मिस हो जाएगा, प्रिसिशन उसमें से आउट हो जाएगा, या फिर जंक वैल्यू चली जाएगी। उसको रोकने के लिए आप ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करते हो। नाउ इज इट क्लियर क्यों कर रहे हैं हम? मैम हाँ मैम हाँ, मैम इसमें फ्लोट डिफरेंट ब्रैकेट में क्यों लिखा है, उसके साथ क्यों नहीं लिखा? यही मीनिंग है, यही बाय मीनिंग है इसका। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का मीनिंग यही है। देखो यहाँ पे पाई जो है फ्लोट है, रेडियस जो है इंटीजर है, रेडियस इंटीजर इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहे हैं विद फ्लोट, तो आपका प्रिसिशन पॉइंट डेफिनेटली बढ़ेगा। और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं उन प्रिसिशन वैल्यू को लॉस करूँ, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर भी है। उसके लिए हम इसको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लोट इनटू दिस ब्रैकेट। अगर हम लूज करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं नहीं 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 कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इम्प्लिसिट पे चले जाओ। बट जब भी इस टाइप का आपका मल्टी प्रॉपर्टी डेटा होगा तो ऑलवेज गो फॉर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, नाउ इज इट Okay, क्लियर? ma'am. एंड मैम ये मैम हाँ बोलो। मैम ये परसेंटेज डी एंड परसेंटेज एफ नहीं समझ आएगा। देखो रेडियस क्या है? रेडियस है इंटीजर, है ना। यस मैम। अगर मैं सिर्फ एक मैसेज प्रिंट कर रही होती हेलो वर्ल्ड, तो मेरे को कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो एक स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है जैसे हमने पहले लिखा था, है ना। मैं सिंपली लिख सकती हूँ यहाँ पे प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ हेलो, है ना। और मैं इसको सिंपली क्लोज कर दूँगी। यहाँ मैं कुछ ना न्यू लाइन डाल रही हूँ ना कुछ डाल रही हूँ, सीधे मैंने प्रिंट एफ लिख दिया, क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रिंग लिटरल को प्रिंट कर रहा है। देखो कुछ एरर भी नहीं है, अदरवाइज इसे हाईलाइट कर देता। बट यहाँ पे मैं स्पेसिफिक हो रही हूँ कि मुझे रेडियस प्रिंट करना है। रेडियस क्या है? एक वेरिएबल है, बट उसके अंदर वैल्यू किस टाइप की है? इंटीजर टाइप की है। तो यह परसेंटाइल डी बता रहा है कि परसेंटाइल डी से आप सिर्फ इंटीजर को ही प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, परसेंटाइल एफ से सिर्फ आप फ्लोट वैल्यू को ही प्रिंट कर सकते हो। एरिया क्या है? एरिया फ्लोट है, तो आपने परसेंटाइल एफ लगाया है। ठीक, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, ओके मैम। समझ में आया? अब इस प्रोग्राम को सब लोग एग्जीक्यूट करो, और कोई एरर आती है, कोई इशू आता है तो मुझे बताओ अभी के। Excuse me, ma'am. हाँ बेटा। And we can convert int to float and float to int also. यस विद देखो फ्लोट, जब भी हम हायर साइड पे जाते हैं, लोअर से हायर जाते हैं, तो हमेशा एक्सप्लिसिट यूज करते हैं। बट अगर हम लोअर टू से लोअर पे जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इम्प्लिसिटली हो जाता है ऑटोमेटिकली बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट हमेशा हायर कंटेनर पे जाने के लिए हमेशा एक्सप्लिसिट लगाओगे।
मैंने इस ग्लास को मुझे बॉटल से रिप्लेस करना पड़ेगा ना इक्वल कैपेसिटी को लाने के लिए, उस तरीके से कंसेप्ट को याद करो, ठीक है? ठीक है Ma'am, can we convert it into a character using explicit cast typing? यस यस यस, यू विल बी डूइंग दैट। जब हम स्काई वैल्यू प्रिंट करेंगे ना नेक्स्ट लैब में सिर्फ प्रोग्राम करोगे, आज सिर्फ रन करके देखो, नेक्स्ट लैब में बहुत सारे प्रोग्राम कराओगे, 5-7 प्रोग्राम आपको देती जाऊंगी, आप करोगे, वहाँ पे ये वाला काम भी करोगे, ठीक है? Ma'am, I have a question about this type conversion. If I have a value in integer and I type convert it into float, so because float is bigger in the size, so will it be converted to float or it will remain an integer? अगर आप इसको बिगर पे लेके जा रहे हो तो हमेशा ऐसे आप ब्रैकेट्स में डालोगे फ्लोट को, ठीक है? तो आपका इंटीजर फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड कंटेनर शुड ऑलवेज बी फ्लोट ऑल्सो, ये चीज का ध्यान रखना। ये नहीं हो सकता कि मैंने यहाँ पे फ्लोट लिखा यहाँ पे डबल डाल दिया, नो, मेरा बॉटल से ही रिप्लेस होगा ना, मैं बॉटल को किसी और चीज से तो रिप्लेस करूंगी नहीं, है ना? तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जो आपकी जहाँ पे ये एक्सेप्ट वैल्यू है, ये आपने जो डिक्लेयर किया है, इसी के अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पे टाइप कास्टिंग होगी, ठीक है? Okay. इस चीज का ध्यान रखना होता है। Ma'am, if we want to continue writing a string after the radius, do we do it directly or do we use something else like? अगर हम स्लैश एन नहीं लगाएंगे तो ये सेम लाइन पे ही कंटिन्यू हो जाएगा। Ma'am, not slash n. Like if we want to write the area of a given circle, comma with the radius this, comma is this. So नहीं, सेम लाइन में नहीं, आप परसेंटाइल डी और परसेंटाइल एफ को भी एक साथ मत करो, वो है बट वो एक डिफरेंट ऑपरेटर के साथ यूज होता है, वो भी नहीं करोगे, ठीक है? अभी अलग अलग लाइन में ही इसको प्रिंट करो, वो पॉसिबल है बट वो कैसे है वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है? अभी नहीं करना उसको यूज, ठीक है? Excuse me, ma'am. हाँ, I'm facing some errors in the program. May I share my screen? हाँ बताओ। Ma'am, please give the option to share. Okay, wait. What's your name, बेटा? Anshuman Garg. एक मिनट। एरर वो बोलो, जब तक मेरे को एरर कंडीशन बताओ, जब तक मैं आपको वो बना रही हूँ। Just a minute, ma'am. It is showing expected is equals to comma comma comma. Ma'am, I just cannot read it. It is. और ये कौन सी लाइन पे आ रहा है? लाइन पढ़ो। Line number 9. Ma'am, can we define like this? Float pi const is equals to 3.14. Float pi Const equals to 3.14. नो, कॉन्स्ट नहीं बना रहे हो, कॉन्स्ट हमेशा प्री प्रोसेसर पे बनता है, तभी एरर आ रहा है, ठीक है? जो आप कॉन्स्ट बोल रहे हो वो हमेशा प्री प्रोसेसर पे होता है, वो इस पे नहीं होता। आप इसको सिंपली डिक्लेयर करो फ्लोट, ये विद इन द फंक्शन आपका डिक्लेयर होगा, यही एरर है आपका, ठीक है? Yes, ma'am. Now it is running. हाँ देखो, सीखो बेटा, इसी टाइप से सीखोगे। क्या हो रहा है? मैं हाँ बेटा। मैम, जो हम मेन फंक्शन से पहले जो इंट यूज करते हैं मैम, वो इसलिए रिटर्न के वजह से करते हैं क्योंकि 0 और 1 इंटीजर वैल्यूज है। यस, दिस इज अ रिटर्न वैल्यू। जैसे मैंने बोला ना, अब जैसे आपके पास कोई पर्सन आता है डिलीवरी के लिए, है ना, आपको पार्सल दे रहा है, बट आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसके एक उस पर साइन कर रहे हो कि यू हैव रिसीव्ड द पार्सल, एंड देन यू फाइंड वन नोटिफिकेशन मैसेज ऑल्सो दैट योर पार्सल हैज़ बीन डिलीवर्ड, ठीक है, सक्सेसफुली। बट उसके लिए उसने रिसिप्ट क्या रखा? आपका सिग्नेचर रखा है ना। ऐसे ही फंक्शन का सिग्नेचर क्या है? फंक्शन का सिग्नेचर ये बोल रहा है कि अगर मैं रिटर्न वैल्यू दे रहा हूँ 0, तो मैंने सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया। अगर मेरे पास कोई अदर देन 1 आया, दैट मीन्स कोई ना कोई इशू हुआ है लिंकर, लोडर या फिर कंपाइलर के साथ। नाउ इज इट क्लियर? तो हाँ मैम, तो आप ये आपने बोला कि हमें रिटर्न हम ऐसे लिखते हैं प्रोग्राम में, और अगर हम नहीं ना भी लिखें तो वो एक 0 या 1 रिटर्न करता है। हाँ, बाय डिफॉल्ट वो करता है, बट ऑलवेज फॉलो दिस रिटर्न 0, ऑलवेज राइट इट। इसको हमेशा के लिए याद कर लो कि ये हमें लिखना ही लिखना है, ठीक है? हाँ जी,
पर तो मैम अगर हम ना लिखते रिटर्न स्टेटमेंट तो भी हमें इंट वाला यूज करना ही पड़ता, क्योंकि वो कंप्यूटर अपनी तरफ से भी दे ही रहा है। हाँ, क्योंकि वो हमारा एक डिफॉल्ट सिग्नेचर है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं उसको। ठीक है, हाँ सारंग बोलो। Am I audible now? हाँ बेटा बोलो। मैम ये फ्लोट बिना टाइप कास्टिंग के भी सेम आंसर दे रहा है, क्योंकि आपने कंटेनर वेरिएबल देखो क्या है, फ्लोट पे डिफाइन किया हुआ है ना। हाँ जी, तो है ना, फ्लोट लेना नेसेसरी तो नहीं है ना? देखो नेसेसरी इसलिए है, देखो यहाँ पे हम नेसेसरी क्यों बना रहे हैं, अगर मैं इस 6 की वैल्यू को और एक्सीड कर दूं, है ना, हाँ जी, कुछ और वैल्यू पे इसको इस तरीके से इंक्रीज करती हुई चली जाऊं कि ये मेरा फ्लोट के ऊपर बियॉन्ड चला जाए, इंटीजर के बियॉन्ड पे चला जाए, उसके लिए हम एक अपने आप में एक कंडीशन लेके चल रहे हैं कि ऑलवेज टाइप कास्टेड। ठीक है, कंटेनर का साइज हमेशा हम बढ़ा के दे रहे हैं क्योंकि इंटीजर मिक्स हो रहा है फ्लोट के साथ, इसलिए ऑलवेज फॉलो दिस कन्वेंशन कि हमेशा टाइप कास्टिंग को यूज करो। अदरवाइज क्या होगा, अभी तो तुम्हें सही दिख रहा है, अगर मैं वैल्यूज को चेंज करना स्टार्ट करूंगी ना तो ये जंक वैल्यू फिल करना स्टार्ट कर देगा, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि ये एक्चुअल मेरी वैल्यू आउटपुट आ रही है या जंक वैल्यू आ रही है। ठीक है, यस अंशुमन, हाँ बोलो। Ma'am, what was the second program? Actually, this area of circle 1 is running successfully. Add integers और divide integers. Okay, ma'am. ठीक है, और ये आज जो कर रहे हो ना प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का भी स्नैपशॉट लेना और आउटपुट का भी स्नैपशॉट लेना और उसको एक्सरसाइज 1 करके वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव कर लेना। ठीक है, Okay, ma'am. स्नैपशॉट कैसे लोगे, प्रिंट स्क्रीन ले लेना, प्रिंट स्क्रीन में कोड भी आ जाएगा और आपका आउटपुट भी आ जाएगा। ठीक है, Ma'am, may I just not copy paste? हाँ कॉपी पेस्ट कर लो, जैसे करना चाहो, जैसे आप कंफर्टेबल हो। Ma'am, I got disconnected. My internet went off. No issues. ठीक है, Ma'am, what's the second program? Add integers. Write a program to add integer और थर्ड प्रोग्राम है write a program to divide integers। ठीक है, बेसिक, आज बेसिक बिहेवियर कर रहे हो। हाँ बोलो। Can you explain what does float mean again? Float, that typecasting. Yes, ma'am. Float in open close bracket, वही पूछ रहे हो ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो आपके पास जब भी आप वेरिएबल्स बना रहे हो, वेरिएबल्स में आपके पास क्या है, आपके पास वेरिएबल में है इंटीजर, फ्लोट, डबल। ठीक है, और आपके पास आ रहा है बुलियन का डेटा टाइप आ रहा है। बट जब भी हम डेटा टाइप पे काम करते हैं, हर एक डेटा टाइप की अपनी एक रेंज है, उसकी कुछ एक डिफाइंड साइज है जिसके थ्रू वो उसको, हम इस टाइप का कुछ भी कन्वर्जन कर रहे हैं, मीनिंग मैं यहाँ पे इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ फ्लोट वैल्यू के साथ, है ना। यहाँ पे हम देखो, अगर आप देखोगे तो रेडियस जो है वो इंटीजर है और आपका जो पाई है वो हमने, क्योंकि वहाँ पे डेसिमल पॉइंट था तो हमने उसको फ्लोट बना दिया, है ना। बट फ्लोट में हमने क्या पढ़ा कि 8 उसके अंदर प्रिसिशन टाइप है कि 8 उसके साथ कैरेक्टर्स को ही आप बाद में डेसिमल पॉइंट के बाद आप उसमें यूज कर सकते हो। तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटीजर को विद फ्लोट, देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इसका जो साइज है वो इंक्रीज होगा, है ना। तो हमने क्या किया, हमने जो कंटेनर वेरिएबल है वो भी हमने बना दिया फ्लोट टाइप का, कि फ्लोट एरिया बनाया क्योंकि डेसिमल पॉइंट है तो इट शुड बी देयर, बट बिकॉज इंटीजर एंड दिस फ्लोट इज बीइंग मल्टीप्लाइड, सो वी नीड टू बी एक्सप्लिसिटली टाइपकास्ट देम, क्योंकि इंटीजर की कैपेसिटी जो जब ये मल्टीप्लाई होकर वैल्यू आ रही है वो हमेशा कैपेसिटी लार्ज होनी चाहिए, तो हम उसको एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट कर रहे हैं, फ्रॉम लोअर टू हायर उसको लेके जा रहे हैं कि हमारी कोई भी वैल्यू लूज नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था ना ग्लास और बॉटल का, कि अगर मुझे सारा पानी उसका उसमें डालना है तो मुझे कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो मेरी इंटीजर की कैपेसिटी तो लो है, पर जब वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो हायर साइड पे जा रहा है, तो वहां पे मेरी कोई भी वैल्यू मिस नहीं होनी चाहिए, कोई प्रिसिशन मिस नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है, जहाँ पे हम एक्सप्लिसिटली मेंशन करते हैं कि हमारा जो कंटेनर है फ्लोट टाइप का है तो फ्लोट टाइप में ही टाइप कास्ट हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? So, ma'am, basically it defines range.
Yes, it defined range and it says कि we should not lose any of the precision point of that. Okay. Okay. Excuse me, ma'am. Hmm. Ma'am, may I make all the 4 addition, subtraction, division, and multiplication? Yes, yes. If you are already aware of the programming concept, do it. And those who are new, they can simply try out any 3 programs. Okay. Where to save the snapshot? बेटा अभी आ जाओ, उसको सेव करके रख लो, ठीक है। जो जो आप रन कर रहे हो उसको बना के रख लो, और फिर हम नेक्स्ट वीक में उसका सबमिशन कराएंगे और उसके आउटपुट भी दिखा देंगे आपको, ठीक है। मैम हाउ टू टेक स्नैपशॉट? प्रिंट स्क्रीन बेटा, आपके कीबोर्ड पर देखो एक प्रिंट स्क्रीन है। यस मैम, ओके मैम। है ना, प्रिंट स्क्रीन से आपका कॉपी हो जाएगा, उसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लो, ठीक है। Okay, meanwhile you gave your attendance also because it's already 11:03. समझ में आ रहा है? कोई टेंशन, डर तो नहीं लग रहा प्रोग्रामिंग से? नो मैम। जो भी चीज समझ में ना आए वो वहीं रोकना, ठीक है। दोबारा से डिस्कस करेंगे। अभी तो हम इसमें बहुत डिस्कशन अभी हमें करना है। अभी हम एक एक चीज पे बहुत इलेबोरेटिव करेंगे आज, क्योंकि तुम्हें लैब में थोड़ा सा प्रोग्राम कराना चाहती थी, इसलिए मैंने आज सिर्फ उतना ही पार्ट रखा है। अभी ये डेटा टाइप बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगी, तो घबराना नहीं कि मैम ने सब इतना सा छोटा सा बता दिया है, इतना नहीं, बहुत इलेबोरेशन है इसके अंदर, ठीक है। और जो बुक मैंने भेजी है उससे भी थोड़ा सा बेसिक चैप्टर पढ़ने की कोशिश करना, ताकि आप रिलेट कर पाओ जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अरे भगवान, क्या हो रहा है? एमएटी मैराथन कहाँ से आ गया? Ma'am, have you uploaded this PPT on MS Teams? नॉट येट, अभी कर देती हूँ बेटा। थैंक यू मैम। ये लो, अभी अपलोड कर देती हूँ। वो पनीर के पराठे ने मेरा मुंह का टेस्ट खराब कर दिया। तो आप पानी पी लो जाके। पापा, नानी, मैंने 10 बार पी है तब भी नहीं हुआ। बेटा चेक करो, देखो आ गया है इसमें। जस्ट अ मिनट। लैब 1 के नाम से होगा। अभी बेटा पेन दो मुझे। अभी अभी पेन। Yes, ma'am. It's accessible. Again. Fine. Okay, now give your attendance. 91. Present, ma'am. 92. 92 स्पर्श। स्पर्श तो था अभी क्लास में, कहाँ गया? मैम प्रेजेंट मैम, माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था। 93, 94, प्रांजल, 96, रमा, 'Rama is also not there. Shekhar beta. Present, ma'am. 96 present.
ठीक है बेटा. 97 विपिन. Present, ma'am. 98. Present, ma'am. 99 Present, Divyam. ma'am. Okay. 300 Mohit. Present, ma'am. 301 Shekhar. Present, ma'am. 302 Sahil. Present, ma'am. 303 Arshi. 306 Present, ma'am. 307 Vidhi. Present, ma'am. 308 Shivansh. Present, ma'am. Present, ma'am. 309 Hiren. Present, ma'am. 310 Gauri. Present, ma'am. 310. 311 Samir. Present, ma'am. Samir present. 312 Shreya. Present, ma'am. 313 Sudiksha. Present, ma'am. 314 Yash. 314 present, ma'am. Okay, beta. 316 Hardik. 316 Hardik. 317 Vanshveer. Vanshveer was there. Yes, ma'am. Present. Yes, ma'am. Present. 318 Shivansh. Shivansh. 319 Sankirat. Present, ma'am. 320 Ishita. Present, ma'am. 321 Neha. Present, ma'am. 322 Parth. Present, ma'am. 324 Aditya. Present, ma'am. 325 Satvik. Present, ma'am. Beta, today I'll send you one club activity to your CR, and CR, please share that in your group. On Thursday you will be having one club activity and you all can join with the help of the president. Okay. 326 Lakshika. Okay. Lakshika present. 328 Sagar present. Present, ma'am. 329 Aditya. Present, ma'am. 330 Prajwal. 330 Prajwal present, ma'am. Okay. 331 Shantanu. Present, ma'am. 332 Ojas. 333 Naman. Present, ma'am. 334 Yuvraj. Present, ma'am. 335 Kushagra. Present, ma'am. 336 Nikita. Present, ma'am. 337 Pragati. Present, ma'am. 338 Vani. 339 Arunit. Present, ma'am. अरुणीत बेटा समझ में आया सर? कोई इशू तो नहीं है? Yes, ma'am. 340 हिमांग. Present, ma'am. हिमांग काम किया, समझ में आया? Okay. 341 सुधांशु. Present, ma'am. 342 आर्यमन. Present, ma'am. 344 दक्ष. 346 रक्षित. 347 आर्य. मैम 346 present. हाँ दोबारा बोलो. 346 present. रक्षित present है. Okay. Yes, Ma'am, 347 present. Fine. Aryan is present. Okay. 348 Nibir. Nibir. Okay. Nibir समझ में आया सब? कोई इशू तो नहीं है बेटा? $349 Anshuman. Anshuman, we are present, ma'am. I just want to ask one thing. हाँ बोलो. Ma'am, I mailed you for the robotics club. Yes बेटा, आपको उसने प्रेसिडेंट ने कांटेक्ट नहीं किया? Ma'am, for the AI club, Naman. मैम रोबोटिक्स के लिए कौन सा क्लब है? रोबोटिक्स का बेटा ECE में है, तो मैंने आपकी रिक्वेस्ट ECE में Ma'am, when will the club start? Which one बेटा? No, मैं भी कांटेक्ट नहीं किया. Ma'am, artificial intelligence club.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बेटा अपने डिपार्टमेंट का ही है, नमन ने आप लोगों को कांटेक्ट किया होगा, अगर नहीं किया है तो मैं नमन का आपको कांटेक्ट नंबर अभी सीआर को भेज दूंगी, नमन का कांटेक्ट नंबर एआई के लिए, और जो एक और एक्टिविटी थर्सडे को हो रही, ठीक है, उसका भी भेज दूंगी। किसी ने भी नहीं किया तो ठीक है, मैं आज सारे क्लब की प्रेसिडेंट्स की मीटिंग करती हूँ, एंड ऐसा होगा तो आई विल ऐड देम फॉर 5 मिनट्स एंड दे विल ब्रीफ यू, ओके। इनको किसी लैब में बुला लूंगी, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लब एंड गेम डेवलपमेंट क्लब contacted through the freshers group. ओके, बट बाकी ने नहीं किया है। No ma'am. No ma'am, not yet. मुझे फिर उन लोगों की मीटिंग लेनी पड़ेगी, इसका मतलब वो लोग काम नहीं कर रहे हैं आजकल, ठीक है। मैम हाँ मैम, जैसे ये करना है ऐड टू इंटीजर्स, उसमें printf में क्या कमांड देंगे? printf में जब तुम ऐड कर रहे हो तो उसका भी तो तुमने कुछ कहीं पे स्टोर वेरिएबल किया होगा ना। मैंने लिखा फर्स्ट इंटीजर फर्स्ट, उसकी वैल्यू दे दी, इंटीजर सेकंड, उसकी वैल्यू दे दी, नेक्स्ट printf में क्या लिखूं? फिर सम करोगी ना, सम इज इक्वल टू, जहाँ पे इन दोनों को सम करोगी और फिर उस वैल्यू को प्रिंट कराओगी, जैसे एरिया में हमने किया ना, पाई आर स्क्वायर किया था, बिल्कुल वैसे ही तुम्हें इंटीजर को सम करना पड़ेगा, है ना। ठीक है। नाउ प्राप्ति 350, प्राप्ति इज देयर। Ma'am, if you are done with our attendance, maybe leave. हाँ, those who have done can leave. Prapti 350. Have you marked my attendance? What's your name, बेटा? Rama 96 roll. Yes, बेटा, आपकी मार्क करती है। प्राप्ति absent. Parth 351. Parth Bansal. Parth was there. Parth. Ma'am, maybe he disconnected or something. Okay, because he was there, right? I can see Prapti also, but she is not replying. Ma'am, our next class is starting. Can we leave if oh yes. Just let me. Anushka, जिनका हो गया बेटा वो लीव कर जाओ। दक्षित, प्रेजेंट मैम। व्हाट्स योर नेम बेटा? अंशिका जैन। यस बेटा। भव्य 354 प्रेजेंट और नॉट? गीतांश, सारंग, सार्थक? Present, ma'am. Sarthak. Sarang is also there. Present, ma'am. Present. Okay. Dakshit is not there. Dakshit Chopra? Ma'am present. Okay, Dakshit is present. Bhavya is absent. 354 I cannot see. And 355. Rest of them are there. Have you marked me present? 357. 350? Yes, beta. Sarang and Sarthak. Both of them. Yes, marked present. Okay. Only absentees are Kitanj and Anushka. They are absent. Okay. Now those who have given their attendance, all of you have given your attendance. Now you can leave. Okay.